سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت نے کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی قدرت کے نشانات چھپا رکھے ہیں، اور ان نشانات تک پہنچنے کا سب سے خوبصورت اور نورانی راستہ درود پاک کی خوشبو سے ہو کر گزرتا ہے۔ آج ہم جس عظیم المرتبت درود مقدس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روحانی چابی ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام نے اپنی پوری زندگی جس فیض کو عام کیا، اس کا مرکز و محور یہی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو درود پاک کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی ہے۔ جب ایک مومن پورے یقین اور کامل توجہ کے ساتھ درود مقدس کا ورد شروع کرتا ہے تو اس کے گرد ایک ایسا نورانی حصار بن جاتا ہے جس میں دنیاوی پریشانیوں اور شیطانی وسوسوں کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب بھی کسی اللہ والے نے معرفت کے بلند مقامات طے کیے تو ان کے لبوں پر درود پاک کا نذرانہ ہمیشہ جاری رہا، کیونکہ صوفیاء کا یہ ماننا ہے کہ درود مقدس وہ عمل ہے جو کسی بھی حال میں رد نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی میں چاہے کیسی ہی بڑی مشکل کیوں نہ آن کھڑی ہو، یا کوئی ایسی حاجت ہو جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہو، درود مقدس کی انوار و تجلیات اس مشکل کو آسانی میں بدلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کنز الایمان کی روشنی میں اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت پر غور کریں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ واحد عمل ہے جس میں خالق اور مخلوق دونوں شامل ہیں۔ درود مقدس کی اصل حقیقت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ یہ انسان کے باطن کی صفائی کرتا ہے اور اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں اپنی فریاد پیش کر سکے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم درود مقدس پڑھتے ہو تو تمہاری روح کا رشتہ براہ راست گنبد خضرا کی مکین سے جڑ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ فیض ملتا ہے جس کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ یہ درود پاک ہر اس شخص کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے جو اپنی زندگی میں تبدیلی کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی گھر میں برکت، رزق میں وسعت اور دل میں سکون کا نزول ہو۔ میرے معزز سامعین، علماء اہل سنت اور مشائخ اعظام نے بہار شریعت جیسی مستند کتب میں بارہا اس بات کی تاکید کی ہے کہ درود پاک کی کثرت انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود مقدس کا یہ فیضان صدیوں سے جاری و ساری ہے، اور جو بھی اس کے دامن سے وابستہ ہوا وہ کبھی محروم نہیں رہا۔ اس کی ہر سطر میں وہ تاثیر ہے جو پتھر دلوں کو موم کر دیتی ہے اور رکی ہوئی دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ جب آپ اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کیسے غیبی مدد آپ کی شامل حال ہوتی ہے، اور وہ کام جو سالوں سے رکے ہوئے تھے وہ دنوں اور گھنٹوں میں مکمل ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ عظیم روحانی سرمایہ ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ورثے میں ملا ہے، اور اس کی قدر کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ درود مقدس کی برکات کا احاطہ کرنا انسانی بس کی بات نہیں، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ سہارا ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور قبر و حشر کی اندھیری منزلوں میں بھی روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ صوفیاء کے اس عظیم عمل کو اپنانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی باغ ڈور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی ہے، اور جس کا حامی و مددگار اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے اسے پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو اس پاکیزہ درود سے تر رکھیں اور اپنے دلوں میں اس یقین کو پختہ کریں کہ درود مقدس ہی وہ صراط مستقیم ہے جو ہمیں کامیابی کی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے۔ یہ وہ آزمودہ نسخہ ہے جس نے لاکھوں کی زندگیوں کو بدلا، اور آج بھی یہ اتنا ہی پر اثر ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تاکہ اس کی دائمی برکات سے ہم اور ہماری نسلیں فیضیاب ہوتی رہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، درود مقدس کی ہر فضیلت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچانیں۔ اولیاء کرام کے درباروں سے لے کر خانقاہوں تک ہر جگہ اسی ایک عمل کی گونج سنائی دیتی ہے، کیونکہ اس میں وہ طاقت ہے جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کا وسیلہ بنتی ہے۔
अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दुरूद मुक़द्दस को शामिल कर लें तो हम देखेंगे कि कैसे हमारे अखलाक, हमारे मामलात और हमारी सोच में एक मुस्बत तब्दीली आती है। ये महज एक वजीफ़ा नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी है जो हमें अपने खालिक के करीब और मखलूक के लिए मेहरबान बनाता है। हर वो शख्स जो आज किसी भी परेशानी का शिकार है, उसे चाहिए कि वो दुरूद मुक़द्दस की इस किले में पनाह ले ले जहाँ सुकून भी है और हर हाजत का हल भी। सूफिया का ये आजमूदा अमल कभी खता नहीं जाता, बशर्ते कि इसे अदब और एहतराम के साथ बजा लाया जाए। दुरूद मुक़द्दस की अज़मत का एक पहलू ये भी है कि इसे पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं होता, बल्कि नूरानी फरिश्ते उसके हमराह होते हैं जो उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं और उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। ये वो मकाम है जो किसी और अमल से हासिल होना मुमकिन नहीं। बस ए मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस नूरानी सफ़र का आगाज़ करें और दुरूद मुक़द्दस की बरक़ात को अपनी आँखों से अपनी ज़िंदगी में उतरते देखें। ये वो सौदा है जिसमें सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा है और इसका अजर सवाब इतना अजीम है कि फरिश्ते भी इसे लिखने से कासिर हैं। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद मुक़द्दस की सच्ची तड़प और उस पर मुदावमत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी दरख्शां हो जाए। दुरूद मुक़द्दस की इस नूरानी सफ़र की दूसरे मरहले में हम इस अजीम राज से पर्दा उठाएंगे जो रुकी हुई नेक हाजात और गैबी मदद के हवाले से सूफिया कराम का निचोड़ माना जाता है। जिंदगी के सफ़र में अक्सर ऐसी मोड़ आती हैं जहां इंसान खुद को बेबस महसूस करता है और उसे लगता है कि तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन यही वो मकाम है जहां दुरूद मुक़द्दस की ताकत अपना असर दिखाती है। सूफिया का ये पुख्ता यकीन है कि जब बंदा दुनिया के सहारे छोड़कर दुरूद पाक के वसीले से बारगाही इलाही में इल्तिजा करता है तो अर्श इलाही से गैबी मदद की वो सिलसिले शुरू होते हैं जिनका इदराक अक्ल इंसानी से बाहर है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, नेक हाजात की कबूलियत के लिए दुरूद मुक़द्दस एक ऐसी ढाल है जो तकदीर के सख्त फैसलों को भी अल्लाह के हुक्म से बदलने की तासीर रखती है। अगर हम बहार शरीयत के अहकामात और बुजुर्गों के इरशादात का मुताला करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ कभी रायगा नहीं जाती, बल्कि उसे वो कुछ अता किया जाता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। जब आप दुरूद मुक़द्दस का विर्द अपनी जुबान पर जारी रखते हैं तो कायनात की तमाम कुव्वतें अल्लाह के हुक्म से आपकी हाजत रवाई के लिए मुतहर्रिक हो जाती हैं, और वो रुकावटें जो सालों से पहाड़ बनकर रास्ते में खड़ी थीं वो रेत की दीवार साबित होती हैं। इस दूसरे नुक्ते की गहराई में जाएं तो हमें मालूम होता है कि गैबी मदद का असल राज मुहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फना हो जाने में है। जब एक मोमिन अपनी हाजत को पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने में मगन हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बिन मांगे वो तमाम काम सवार देता है जिनके लिए वो परेशान था। ये सूफिया का वो आजमूदा नुस्खा है जिसने सदियों से मायूस दिलों को उम्मीद की नई किरण दी है और रुकी हुई मुरादों को बरलाया है। दुरूद मुक़द्दस की रूहानी लहरें जब कायनात में फैलती हैं तो वो हर उस नेक हाजत को अपनी लपेट में ले लेती हैं जो खैर और भलाई पर मबनी हो। बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहां नामुमकिन को मुमकिन होते देखा गया, और वो सिर्फ इसलिए कि वहां दुरूद मुक़द्दस का सहारा लिया गया था। रुकी हुई शादी हो, रिज़्क़ की तंगी हो या कोई पेचीदा कानूनी मामला, दुरूद मुक़द्दस का विर्द करने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों, गैबी मदद का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जहां से इंसान को गुमान भी नहीं होता। कंजुल ईमान की तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह ही हर हाजत पूरी करने वाला है, और दुरूद पाक वो वसीला है जो बंदे को अल्लाह के इतने करीब कर देता है कि उसकी पुकार को रद्द नहीं किया जाता। इसी तरह इस अजीम दुरूद की बरकत से वो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं जिनकी चाबियां गुम हो चुकी हों। ये दुरूद मुक़द्दस ही है जो परेशानी के बादलों को छांट देता है और इंसान के लिए कामयाबी और कामरानी के नए रास्ते खोलता है। इसकी तासीर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे पढ़ने वाला कभी महरूम तमन्ना नहीं रहता। अल्लाह पाक की गैबी मदद उन लोगों के लिए खास है जो अपने हर काम का आगाज और इख्तिताम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर करते हैं। ये अमल न सिर्फ दुनियावी हाजतों के लिए मुफीद है बल्कि ये आखिरत के बड़े बड़े इम्तिहानात में भी काम आने वाला है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी हर मुश्किल में किसी दर पर भटकने की बजाय दुरूद मुक़द्दस का दामन थाम लें। ये वो मजबूत रस्सी है जो कभी नहीं टूटती, और ये वो सहारा है जो कभी पीठ नहीं दिखाता। जब हम पूरे इखलास के साथ दुरूद मुक़द्दस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो गैबी मदद का नुज़ूल एक यकीनी हकीकत बन जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब की तमाम नीक और जायज़ हाजात को दुरूद मुक़द्दस की तुफ़ैल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएं और हमें हमेशा अपनी गैबी मदद के साई में रखें ताकि हम किसी के मोहताज ना रहें।
मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, दुरूद मुक़द्दस के फ़ज़ाइल की इस नूरानी कड़ी में अब हम इस तीसरे और सबसे दिलचस्प नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक ऐसा अजीम और आज़मूदा तारीख़ी वाक़या है जिसे सुनकर आपके ईमान को एक नई जला मिलेगी। सूफिया कराम की महाफिल में ये बात तवातुर के साथ बयान की जाती है कि जब भी कोई बंदा खुदा किसी ऐसी मुसीबत में फंस गया जहां से निकलने की बज़ाहिर कोई सूरत मौजूद न थी, तो वहां दुरूद मुक़द्दस की बरक़ात ने मौजज़ाती तौर पर अपना असर दिखाया। एक बार एक अल्लाह वाले का तस्करा मिलता है जो किसी जालिम हाकिम के अताब का शिकार हो गए और उन्हें ऐसी काल कोठड़ी में डाल दिया गया जहां से रिहाई का तसव्वुर भी नामुमकिन था। इस कड़े वक्त में जब दुनियावी असबाब खत्म हो गए तो उन बुजुर्ग ने दुरूद मुक़द्दस का विर्द शुरू कर दिया। वो दिन रात पूरे खुशू व खुजू के साथ इस दुरूद पाक की तिलावत में मगन रहे, यहां तक कि एक रात उन्हें ख्वाब में बशारत हुई कि ए बंदाए खुदा, तूने उस हस्ती पर दुरूद भेजा है जो तमाम जहानों के लिए रहमत है। जा, तेरी रिहाई का परवाना अर्श मुअल्ला से जारी हो चुका है। अगले ही दिन वो जालिम हाकिम जो उनकी जान का दुश्मन था, खुद चलकर उनकी कैदगाह में आया और रोते हुए मुआफी मांगकर उन्हें रिहा कर दिया, क्योंकि उसने भी वही मंजर देखा था जो इस दुरूद की बरकत का नतीजा था। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि दुरूद मुक़द्दस सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि ये वो नूरानी लहरें हैं जो बड़ी से बड़े पहाड़ जैसे मसाइल को भी रीज़ा रीज़ा करने की ताकत रखती हैं। सूफिया कराम ने बहारी शरीयत के हवालों और अपने मुशाहिदात की रोशनी में ये वाज़ेह किया है कि दुरूद पाक की बदौलत अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस वाक़ई में हमारे लिए ये पैगाम पोशीदा है कि जब हम दुरूद मुक़द्दस पढ़ते हैं तो दर हकीकत हम कायनात की उस सबसे बड़ी हस्ती का वसीला पेश कर रहे होते हैं जिनके सदक़े ये पूरी कायनात तख्लीक की गई है। मेरे भाइयों, तारीख के औराक ऐसे हजारों वाक़यात से भरे पड़े हैं जहां किसी का डूबता हुआ बेड़ा पार हो गया, किसी की लाइलाज बीमारी शिफा में बदल गई और किसी की नस्लों से चली आ रही दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई। ये सब कुछ दुरूद मुक़द्दस की उस तासीर का नतीजा है जो बंदे को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब कर देती है कि फिर कोई परेशानी उसे परेशान नहीं कर पाती। इस वाक़े को याद रखने का मकसद ये है कि जब भी आप पर कोई कड़ा वक्त आए तो मायूस होने के बजाय आप इस आज़मूदा अमल की तरफ रुजू करें जो सदियों से औलियाउल्लाह का शेवा रहा है। कंजुल ईमान की रूह हमें यही सिखाती है कि तमाम तर ताकत और कुदरत अल्लाह ही के पास है और दुरूद पाक वो कंजी है जो उस कुदरत के खजानों के दरवाजे खोल देती है। जब एक परेशान हाल शख्स दुरूद मुक़द्दस की पनाह लेता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए मामूर हो जाते हैं और उसके दुश्मनों के दिलों में उसकी हैबत डाल दी जाती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो हक़ाइक़ हैं जो उन लोगों ने अपनी आंखों से देखे जिन्होंने दुरूद मुक़द्दस को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाया। इस तीसरे नुक्ते की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये हमें अमली सबूत फराहम करता है कि आज के दौर में भी दुरूद मुक़द्दस इतना ही पुरअसर है जितना कि पहले जमाने में था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मोजज़ात का ज़ुहूर हो और आपकी रुकी हुई नेक हाजात पूरी हों, तो इस तारीखी वाक़े से सबक हासिल करते हुए दुरूद मुक़द्दस की कसरत को अपना मामूल बना लें। सूफिया फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुरूद की लज्जत को पा लेता है वो फिर दुनिया की किसी और चीज़ का मुहताज नहीं रहता। मेरे भाइयों, इस ईमान अफरोज़ वाक़े को अपने दिलों में नक्श कर लें और जब भी हिम्मत टूटने लगे तो याद करें कि दुरूद मुक़द्दस का सहारा अभी बाकी है। ये वो नूर है जो कब्र की अंधेरी रात में भी साथ देगा और हश्र की तपती धूप में भी ठंडा साया बनेगा। अल्लाह ताला हमें इस अजीम दुरूद की हकीकत को समझने और उसे सच्ची मोहब्बत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम भी उन बरक़ात के वारिस बन सकें जो सदियों से अहलुल्लाह का मुक़द्दर रही हैं। दुरूद मुक़द्दस के इस ईमान अफरोज़ बयान में अब हम चौथे नुक्ते की जानिब कदम बढ़ाते हैं जो कि रूहानी बरक़ात और बातिनी सुकून के हुसूल से मुताल्लिक़ है। आज के इस पुरफितन दौर में जहां हर इंसान ज़हनी दबाव, बेचैनी और अंदरूनी खलफशार का शिकार है, वहां दुरूद मुक़द्दस की तिलावत एक ऐसे ठंडे चश्मे के मानिंद है जो तपते हुए वजूद को राहत और करार बख्शती है। सूफिया किराम का यह मुशाहिदा रहा है कि जो दिल दुरूद मुक़द्दस के अनवार से मुनव्वर हो जाता है वहां दुनिया की कोई परेशानी अपने कदम नहीं जमा सकती, क्योंकि इस दुरूद की बरक़ात इंसान के गिर्द एक ऐसा रूहानी किला तामीर कर देती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुकून क़ल्ब की हुक्मरानी होती है। रूहानी बरक़ात का मतलब सिर्फ मादी खुशहाली नहीं, बल्कि वो बातिनी रोशनी है जो इंसान को अपने खालिक के करीब कर देती है। जब एक मोमिन पूरे इखलास के साथ दुरूद मुक़द्दस का विर्द करता है तो उसकी सीने में मारिफत इलाही के वो चराग रोशन होते हैं जिनकी ताबनाकी से उसकी पूरी जिंदगी चमक उठती है।
بہار شریعت کے مطالعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد عمل ہے جو روح کی غذا ہے اور جس کے بغیر انسان کا باطن پیاسا رہتا ہے۔ درود مقدس کی تلاوت سے نہ صرف گناہ جھڑتے ہیں بلکہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اسے وہ روحانی ذائقہ نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی تمام نعمتوں پر بھاری ہے۔ میرے معزز سامعین، باطنی سکون کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ درود مقدس پڑھنے والے کا چہرہ اور کردار خود بخود پر نور ہونے لگتا ہے۔ یہ اس غیبی فیض کا اثر ہوتا ہے جو براہ راست بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ کنز الایمان میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد تک پہنچنے کا سب سے مختصر اور پیارا راستہ درود پاک ہے۔ جب آپ درود مقدس کی کثرت کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے جھگڑے، بے برکتی اور نحوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے لیے سکون اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ روحانی برکات انسان کے رزق میں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے معاملات میں بھی۔ جو کام پہلے الجھنوں کا شکار تھے وہ درود مقدس کی برکت سے اتنے سہل ہو جاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ صوفیائی نظام اپنی محفلوں میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری راتیں پرسکون ہوں اور تمہارے دن انوار و تجلیات سے بھرپور ہوں تو درود مقدس کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ وہ باطنی علاج ہے جو نفسیاتی بیماریوں اور وہم و وسوسوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس چوتھے نقطے کا لب لباب یہ ہے کہ درود مقدس محض ایک عمل نہیں بلکہ روح کی شفا ہے۔ جب ہم اس درود کو محبت اور تڑپ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے دل کا زنگ اتر رہا ہے اور ہم ایک نئی روحانی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت رکھتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے اور اپنے گھروں میں برکات کا سیلاب لانے کے لیے درود مقدس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ اسے اپنی سانسوں میں بسا لیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کا باطن روشن ہوتا ہے اور کیسے وہ سکون آپ کو میسر آتا ہے جس کی تلاش میں لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے معزز سامعین، درود مقدس کے اس نورانی بیان کے 5ویں نقطے میں ہم اس خاص طریقے اور مخصوص عمل کا ذکر کریں گے جو صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے معمولات سے ثابت ہے اور جس کی برکات کا تذکرہ معتبر کتب میں ملتا ہے۔ صوفیاء کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی عمل کی تاثیر اس کے صحیح طریقے اور کامل یقین میں پوشیدہ ہوتی ہے، اور جب بات درود مقدس کی ہو تو اس کے آداب کا لحاظ رکھنا قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ علماء اہل سنت اور مشائخ اعظام نے بہار شریعت کے فیضان اور اپنے تجربات کی روشنی میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ درود مقدس کو اگر ایک خاص ترتیب اور روحانی توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ رکی ہوئی حاجات کو پورا کرنے کے لیے تیر بہدف ثابت ہوتا ہے۔ اس مخصوص عمل کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر اور قبلہ رخ بیٹھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ پہلے توبہ و استغفار کرے، کیونکہ گناہوں کی آلودگی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کے بعد اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر درود مقدس کا ورد شروع کرے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر اس درود پاک کو تہجد کے وقت یا جمعہ کی مبارک رات میں پڑھا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ کنز الایمان کی روح ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، اور درود مقدس سے بہتر بارگاہ الہی میں کوئی اور وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل صرف الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی وہ پکار ہے جو براہ راست عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔ صوفیاء کا بتایا ہوا یہ طریقہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تم درود مقدس پڑھو تو یہ تصور کرو کہ تم گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو اور تمہارا سلام براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جب اس درجے کی حاضری اور دھیان پیدا ہو جائے تو پھر غیبی مدد کا نزول شروع ہوتا ہے، اور وہ تمام رکاوٹیں جو انسانی عقل کے مطابق ناقابل عبور تھیں وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین، بزرگان دین نے اس عمل کو ہمیشہ پوشیدہ رکھنے اور پوری رازداری کے ساتھ کرنے کی تاکید کی ہے تاکہ اخلاص برقرار رہے اور ریاکاری کا شائبہ بھی نہ آئے۔ اس 5ویں نقطے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ ہمیں نظم و ضبط اور روحانی ترتیب سکھاتا ہے۔ بہت سے لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن آداب کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ ثمرات حاصل نہیں ہو پاتے جو مقصود ہوتے ہیں۔ درود مقدس کا یہ آزمودہ طریقہ ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہے جو اپنی پریشانیوں کا فوری اور پائیدار حل چاہتا ہے۔ اس عمل کے دوران زبان کے ساتھ ساتھ دل کا دھڑکنا بھی ضروری ہے، یعنی دل میں یہ تڑپ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں۔
क्योंकि जब वो राजी हो गए तो कायनात का मालिक खुद ब खुद राजी हो जाएगा। इस मखसूस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और सूफिया के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हुए दुरूद मुकद्दस की बरकत समेटें। ये वो रास्ता है जो भटके हुए लोगों को मंजिल तक पहुंचाता है और मायूस दिलों को उम्मीद की नई जिंदगी बख्शता है। अगर आप इस्तिकामत के साथ इस तरीके पर अमल करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी की उलझनें सुलझना शुरू हो गई हैं और कैसे आपका हर काम खैर व आफियत के साथ मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सूफिया के बताए हुए अनवारे दुरूद से अपने सीनों को मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए। इसी 5वें नुक्ते के तसलसल में एक और निहायत अहम और ईमान अफरोज पहलू ये है कि दुरूद मुकद्दस के इस अमल को जब इज्तिमाई सूरत में या घर के तमाम अफराद मिलकर इख्तियार करते हैं तो उस घर की फजाओं में एक ऐसी रूहानी तब्दीली आती है जिसका मुशाहिदा सूफिया किराम ने बारहा किया है। सूफिया फरमाते हैं कि जिस घर में दुरूद मुकद्दस की सदाएं बुलंद होती हैं वहां से शयातीन और नहूसियत ऐसे भागती हैं जैसे सूरज की रोशनी से अंधेरा गायब हो जाता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस अमल का एक और हैरत अंगेज पहलू ये है कि दुरूद मुकद्दस पढ़ने वाले के रिस्क में बरकत के ऐसे दरवाजे खुलते हैं कि उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती। सूफिया का ये आजमूदा कौल है कि जो शख्स दुरूद पाक का दामन थाम लेता है, रिस्क उसके पीछे ऐसे भागता है जैसे प्यासा पानी की तरफ। इस 5वें नुक्ते के इस हिस्से को बयान करने का मकसद ये है कि आपको इस अमल की हमाजहत बरकत का अंदाजा हो सके और आप पूरे एतमाद के साथ इसे अपनी जिंदगी का जुज़्वे लायनफक बना लें। जब आपकी ज़बान दुरूद मुकद्दस से तर होगी तो आपकी हर बात में असर पैदा होगा और आपके दुश्मन भी आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहारी शरीयत के फैज़ान से हमें ये रहनुमाई मिलती है कि वज़ाइफ में तादाद से ज़्यादा मियार और हुजूर क़ल्ब की अहमियत होती है, लेकिन मुशाइख़ अज़ाम ने इस दुरूद मुकद्दस के लिए कुछ ख़ास आदात भी मुकर्रर फरमाए हैं जो मखसूस हाजतों के लिए तीर बदफ हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई सख्त मुश्किल दरपेश हो तो उसे 40 दिन तक एक ख़ास वक्त पर पढ़ना इस मुश्किल के हल का यकीनी ज़रिया बनता है। कंजुल ईमान की रोशनी में हमें यह मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की फरियाद को कभी रद्द नहीं फरमाता और जब वो फरियाद दुरूद मुकद्दस के लिबादे में लिपटी हो तो रहमत इलाही जोश में आ जाती है। ये अमल इंसान को सिर्फ दुनियावी फायदे नहीं देता बल्कि उसके बातिन की ऐसी तरबियत करता है कि उसे हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहने का सलीका आ जाता है। ये नूरानी अमल एक ऐसी ढाल है जो हासिदीन के हसद और शरीरों के शर से इंसान को महफूज रखती है। सूफिया कराम ने हमेशा ताकीद की है कि जब तुम ये अमल करो तो तुम्हारा लिबास, तुम्हारी जगह और तुम्हारा लुक्मा हलाल होना चाहिए, क्योंकि पाकीज़ा अमल के लिए पाकीज़ा बुनियाद का होना जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, दुरूद मुकद्दस के इस नूरानी और पुरतासीर बयान के 6ठे नुक्ते में हम कबूलियत की शर्त और इस्तिकामत के उस समर का जिक्र करेंगे जो किसी भी रूहानी अमल की रूह कहलाती है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि अमल करना एक बात है, लेकिन उस पर कायम रहना और उसे कबूलियत के दर्जे तक पहुंचाना असल कमाल है, क्योंकि अक्सर लोग जोश में आकर अमल तो शुरू कर देते हैं, लेकिन चंद दिन बाद जब दुनियावी मसरूफियात आड़े आती हैं तो वो हिम्मत हार बैठते हैं। दुरूद मुकद्दस की मिसाल उस बारिश के कतरे की तरह है जो अगर मुस्तकिल मिजाजी से पत्थर पर भी गिरे तो उसमें सुराख कर देता है। इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात के पहाड़ भी खड़े हों तो दुरूद मुकद्दस की इस्तिकामत उन्हें रेजा रेजा कर देगी। कबूलियत की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपका दिल बुग़्ज़, कीना और हसद जैसी बातिनी बीमारियों से पाक हो, क्योंकि जिस बर्तन में गंदगी हो वहां दूध नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल इसी तरह जिस दिल में कीना हो वहां दुरूद मुकद्दस के अनवार नहीं ठहर सकते। बहारे शरीयत के इरशादात हमें सिखाते हैं कि दुरूद पाक की कबूलियत का एक अहम रास्ता ये भी है कि हम हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें और अपनी ज़बान और हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचाएं। जब आप इन शराइत के साथ दुरूद मुकद्दस का विर्द करते हैं तो आपका अमल बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत पाता है और फिर आपकी ज़बान से निकली हुई हर बात में वो तासीर पैदा हो जाती है कि लोग दंग रह जाते हैं। इस्तिकामत का समर ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपको महसूस होगा कि आपके अंदर की दुनिया बदल रही है और अब आपको दुनियावी चीजों से ज्यादा दुरूद पाक की मिठास में सुकून मिलने लगा है। मेरे प्यारे भाइयों, कंजुल ईमान की रूह हमें बताती है कि अल्लाह के नेक बंदे वही हैं जो हर हाल में अपने रब के जिक्र और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुम रहते हैं। सूफियाए इज़ाम ने इस 6ठे नुक्ते में एक ख़ास राज ये भी बताया है कि जब तुम दुरूद मुकद्दस पढ़ने के आदी हो जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमानों पर होने लगेंगे और तुम्हारी हर नेक हाजत तुम्हारे मांगने से पहले ही पूरी कर दी जाएगी।
इस नुक्ते का एक अहम पहलू ये है कि ये अमल सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे दूसरों तक पहुंचाना भी कबूलियत की एक अलामत है। जब आप किसी दुखी इंसान को, किसी परेशान हाल को या किसी बेरोजगार को दुरूद मुकद्दस का ये रास्ता दिखाते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले आपकी अपनी तमाम रुकावटें दूर फरमा देता है। ये वो शेयरेबिलिटी है जिसका सूफिया ने हमेशा हुक्म दिया है कि खैर को फैलाओ ताकि खैर तुम्हारे घर लौट कर आए। दुरूद मुकद्दस की बरक़ात का दायरा इतना वसी है कि इसमें शरीक होने वाला हर शख्स फैज़याब होता है। इस्तिकामत का एक मतलब ये भी है कि चाहे हालात साजगार हों या नामवाफिक, आपके लबों से दुरूद मुकद्दस का नगमा जुदा ना हो। बहुत से लोग सिर्फ मुश्किल में अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन सूफिया का तरीका ये है कि वो खुशी में भी शुक्राने के तौर पर दुरूद पाक की कसरत करते हैं। यही वो मकाम है जहां बंदा अपने रब का महबूब बन जाता है। जब आप दुरूद मुकद्दस पर मदावत इख्तियार कर लेते हैं तो फरिश्ते आपके दोस्त बन जाते हैं और कायनात की मखलूकात आपके लिए दुआगो रहती हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, इस छठे नुक्ते को अपने पल्ले बांधें कि कामयाबी का राज सिर्फ शुरू करने में नहीं बल्कि अंजाम तक पहुंचाने में है। दुरूद मुकद्दस को अपनी जिंदगी की सांस बना लें और उसे इस यकीन के साथ पढ़ें कि यही वो निजात का रास्ता है जो आपको हर आजमाइश से निकालकर अमन व सलामती के साहिल पर ले जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुरूद मुकद्दस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमारी तमाम नेक हाजात को उसके तुफैल कबूल फरमाए। ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद हम उन तफसीली कलिमात की तरफ बढ़ेंगे जो इस अमल के मज़ीद पुरअसर बनाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, दुरूद मुकद्दस वो अजीम और पुरनूर दुरूद पाक है जिसकी बरक़ात से सूफिया किराम ने हमेशा अपने सीनों को मुनव्वर किया है और अपनी हाजतों को पूरा करवाया है। दुरूद मुकद्दस के कलमात ये हैं: अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताजी वल मिअराजी वल बुराक़ी वल आलम दाफ़िअल बलाई वल वबाई वल क़हती वल मरज़ी वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मरफ़ूउन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदिल अरबी वल आजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफुल वरा मिसबाहुल ज़ुलमी जमीलुश शियमी शफ़ीउल उमम साहिबिल जूदी वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराक़ु मरकबुहु वल मिअराजु सफ़रुहु व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन राहतल आशिकीन मुरादल मुश्ताकीन शम्सल आरिफीन सिराजस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बल फ़ुक़राई वल गुरबाई वल मसाकीन सय्यिदिस सकलैन नबिय्युल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, दुरूद मुक़द्दस के इस नूरानी और पुरतासीर बयान के तमाम निकात मुकम्मल होने के बाद अब हम उस सबसे अहम घड़ी की तरफ आ चुके हैं जहां हमें अपने रब के हुजूर दस्ते सवाल दराज करना है। सूफियाए किराम का ये सदियों का आजमूदा तजर्बा है कि जब दुरूद मुक़द्दस की तिलावत के बाद खुलूस दिल से दुआ मांगी जाए तो वो दुआ अर्शे इलाही के दरवाज़ों पर दस्तक देती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम वसीले को कभी रद्द नहीं फरमाता। आपने अब तक इस दुरूद पाक की जो फजीलतें और बरक़ात समात फरमाई, ये आपके लिए एक ऐसी रूहानी चाबी है जो आपकी ज़िंदगी के हर ताले को खोल सकती है। आज के इस इख्तितामी हिस्से में हम वो रिक्कत आमेज दुआ करेंगे जो आपकी तमाम नेक हाजात की कबूलियत का जरिया बनेगी और आपके घरों में खुशियों और बरकतों का सैलाब ले आएगी। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अब अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने जहन को दुनिया के तमाम तफक्कुरात से आज़ाद करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत पर नज़र रखें, क्योंकि जब बंदा अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करता है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है तो फरिश्ते भी उसकी दुआ पर आमीन कहने के लिए उतर आते हैं। बहार शरीयत की रोशनी में दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका यही है कि अव्वल व आखिर दुरूद पाक हो ताकि दुआ की कबूलियत यकीनी हो जाए। या अल्लाह, या गफूर, या रहीम, तेरे महबूब सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक दुरूद के सदक़े हमारी आज की इस महफिल को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमने जो कुछ बयान किया और जो कुछ सामईन ने सुना, इसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो अपने फजल से मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह, दुरूद मुक़द्दस के हर एक हर्फ के बदले हमारे सामईन की ज़िंदगी से परेशानियों को खुशियों में बदल दे।
या अल्लाह, इस आखिरी कलमात के सदक़े हमारे सामईन के दिलों में वो इस्तकामत पैदा फरमा कि वो कभी सिराते मुस्तकीम से ना भटकें। या अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमें बार बार अपने घर की ज़ियारत और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अनवर की हाज़री नसीब फरमा। या अल्लाह, दुरूद मुक़द्दस की इस मजलिस को हम सब की बख्शिश का ज़रिया बना और हमें क़यामत के दिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या अल्लाह, जो लोग इस वक्त हस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, उन्हें इस दुरूद पाक के सदक़े नई ज़िंदगी और सेहत अता फरमा, और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। या अल्लाह, जो भाई अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान हैं, उनके लिए गैब से बेहतरीन असबाब पैदा फरमा। जो बेरोज़गारी की वजह से ज़हनी तनाव का शिकार हैं, उन्हें दुरूद मुक़द्दस की बरकत से ऐसी मकाम से रिज़्क़ अता फरमा जहाँ से उन्हें गुमान भी ना हो। या अल्लाह, हमारे घरों में इत्तिफाक और मोहब्बत पैदा फरमा और हमें हर किस्म के जादू टूने, नज़र बद और हासिदीन के शर से अपनी पनाह में रख। या रब्बुल आलमीन, इस दुरूद पाक के सदक़े हमें वो बातिनी सुकून अता फरमा जिसकी तलाश में दुनिया सरगर्दा है। या अल्लाह, हमारी नस्लों को दीन व ईमान पर कायम रख और हमें उस वक्त तक इस दुनिया से ना उठाना जब तक हमारी ज़ुबानों पर कलमा तय्यबा और दिल में तेरी मोहब्बत का नूर ना हो। या अल्लाह, इस वीडियो को और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने वालों की तमाम दिली मुरादें पूरी फरमा और इसे हमारे लिए कब्र व हश्र का नूर बना दे। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब वक्त है कि हम इस यकीन के साथ रुखसत हों कि हमारा रब हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। इस वीडियो को सदक़ाए जारिया की नीयत से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ये नूरानी सिलसिला हर घर